دنیا بھر سے لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو شہید ارشد شریف کا سلام۔ ناظرین کرام، پچھلی ویڈیو میں نے آپ کے سامنے کچھ حقائق رکھے تھے کہ اگلے 72 گھنٹوں میں پاکستان کی سیاست جو ہے وہ خطرناک رخ اختیار کر جائے گی اور بہت اہم ترین ثابت ہو جائیں گے اگلے 72 گھنٹے۔ تو اس کا نتیجہ سامنے آنا شروع ہو چکا ہے اور جس کے بعد اقتدار کے ایوان اور جی ایچ کیو جو ہے وہ ہل کر رہ گیا ہے، جس کے بعد اگر میں یہ بھی کہوں کہ پاکستان مشرق نواز کی حکومت بامقابلہ جنرل باجوہ، تو یہ کہنا بھی غلط نہیں ہوگا، کیونکہ نون لیگ نے اپنی توپوں کا رخ جنرل باجوہ کی جانب کر ڈالا ہے۔ سب سے پہلی بریکنگ نیوز جو آپ کے سامنے رکھنی ہے کہ نئے آرمی چیف کی تعیناتی جوں قریب آتی چلی جا رہی ہے اور نواز شریف کا کردار۔ اب آپ نے ان دونوں خبروں کو ساتھ ملانا ہے تو آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ آج مریم نواز گروپ کی ننگی ویڈیوز جو ہیں ان کو مارکیٹ میں لیک کر دیا گیا ہے، جس کے بعد نیا کٹا کھل چکا ہے۔ وہ مریم نواز جن کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ ان کے پاس طاقتور لوگوں کی بھی ویڈیوز موجود ہیں، اب ان کی ویڈیوز یہ سامنے آنا، جس کے بعد یہ آثار نظر آ چکے ہیں کہ مریم نواز گروپ کو ہائی جیک کر لیا گیا ہے۔ اور یہ ویڈیو کس کی ہے، اس میں خاتون کون سی ہے، اور سب سے اہم کہ وہ ویڈیو جو ہے وہ کس نے ریکارڈ کی ہے، کس نے لیک کی ہے، اور اس کے پیچھے مقصد کیا ہے، اے ٹو زی تمام انفارمیشن میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے، اور مریم نواز کو اس ویڈیو کے بعد کیا پیغام پہنچایا گیا ہے۔ دوسری خبر پر جو آج ہم بات کریں گے کہ نون لیگ نے جنرل باجوہ کے خلاف اعلان جنگ کر دیا ہے اور اس ویڈیو کا جواب دیا گیا ہے باقاعدہ طور پر، اور شہباز شریف نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے جو چیف جسٹس ہیں ان کو بھی خط لکھ ڈالا ہے۔ ارشد شریف قتل کیس میں نون لیگ نے طبلِ جنگ بجا دیا ہے کہ طاقتور شخصیت ان کی قاتل ہے۔ ہوش ربا انکشافات ہیں، اس حوالے سے اہم ترین تفصیلات میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ ارشد شریف کے قاتل جو ہیں وہ حکومت نے پہلی بار پاکستانی قوم کے سامنے ایکسپوز کر دیے ہیں، اور عمران خان صاحب کو گرفتار کرنے کا گرین سگنل دے دیا گیا ہے۔ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ اب یہ گرین سگنل کیوں دیا گیا ہے، مقصد کیا ہے، عمران خان صاحب کو گرفتار کیوں کرنا ہے، اور اسٹیبلشمنٹ اس وقت گھبرائی کیوں ہوئی ہے، اور خواجہ سعد رفیق نے اس وقت خطرے کی گھنٹی بجا کے رکھتی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی بلاول بھٹو کو اگلا وزیراعظم ماننے سے انکار کر دیا ہے۔ دو اہم ترین استعفے جو کہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیے پر چل رہے تھے اور بھٹو کی سیاست کو انہوں نے مسترد کر دیا، اور آج پاکستان پیپلز پارٹی کو خیر بات کہہ دیا ہے۔ کیا وہ عمران خان صاحب کو جوائن کرنے جا رہے ہیں؟ وہ دو استعفے بڑے امپورٹنٹ ہیں، ان کا نام کیا ہے، یہ تمام تفصیلات میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ لیکن اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو دبا دیں، آنے والی تمام طرف اپڈیٹس آپ کی خدمت میں بر وقت پیش ہوتی رہیں۔ ناظرین کرام، اگلے 72 گھنٹے پاکستان کی پالیٹکس میں یہ بہت ہی زیادہ ڈیسائسو ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ ایمرجنسی، آج کور کمانڈر کانفرنس ہے، ہوگی یا جب ویڈیو آپ کے سامنے آن ایئر ہو تو اس وقت اس کا آئی ایس پی آر جو ہے وہ سٹیٹمنٹ جاری کر دیں، پریس ریلیز سامنے آ جائے، تو اس میں باقاعدہ طور پر پاکستان میں ایمرجنسی، دوسرا صوبوں میں گورنر راج لگانے کے حوالے سے بڑے اہم فیصلے ہونے ہیں، پاکستان کی سیکیورٹی کے اوپر یہ بڑے اہم فیصلے ہونا ہے۔ تو اس حوالے سے میرے ذرائع کے مطابق مبینہ طور پر ڈاکومنٹس کو بھی تیار کر لیا گیا ہے، تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں، اور پاکستان کے چیف آف آرمی سٹاف نے صدر پاکستان کو باقاعدہ طور پر یہ پیغام پہنچا دیا ہے کہ اگر یہ سیاستدان مل بیٹھ کر اپنے جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے اس کو کم کر لیتے ہیں، الیکشن کی تاریخ پر بات کر لیتے ہیں، پھر تو ٹھیک ہے، وگرنہ فوج کو مداخلت کرنا پڑے گی اور پاکستان میں سیدھا سادہ مارشل لا لگا دیا جائے گا۔ اور گورنر ہاؤس کی اگر میں بات کرتا ہوں تو گورنر ہاؤس لاہور میں اس وقت رینجرز کو طلب کر لیا ہے باقاعدہ طور پر۔ یہ نون لیگ کی خوش قسمتی ہے کہ بلیغ الرحمان کو رینجرز جو ہے وہ تو موصول مل گئی، ان کی سیکیورٹی مل گئی، لیکن جب پاکستان تحریک انصاف کے عمر چیمہ صاحب جو ہیں وہ یہاں پر گورنر تھے تو ان کو رینجرز کی سیکیورٹی فراہم نہیں کی گئی تھی، جبکہ انہوں نے درخواست بھی کی تھی۔ تو وہ کون تھا جس نے عمر چیمہ کو رینجرز کی سیکیورٹی فراہم کرنے سے انکار کر دیا تھا؟ اور اگلا وزیر اعظم بلاول بھٹو، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ میں کہہ کیوں رہا ہوں، کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کے دو لوگوں نے، انتہائی اہم ترین یہ لوگ ہیں، انتہائی اہم ترین ایک سینیٹر ہیں اور پھر ایک بہت سینئر سیاستدان ہیں، انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کو کیا خیر بات کہہ دیا ہے۔ یہ سوشل میڈیا پر باز گشت ہے، لیکن آپ کو بہت امپورٹنٹ خبر دے دیتا ہوں، کیونکہ جو مبینہ طور پر میرے ذرائع ہیں وہ اس بات کی تصدیق کر لیتے ہیں کہ جنرل باجوہ صاحب جو ہے بلاول بھٹو کو اگلا وزیر اعظم دیکھنا چاہتے ہیں، اور آصف علی زرداری کی یہ ان کی بہت بڑی خواہش ہے، ان کا خواب ہے کہ جناب ان کی زندگی میں بلاول بھٹو اگلے وزیر اعظم بن
मान जाए। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो इस वजह से बड़ी खामोशी से, खामोश डिप्लोमेसी के तहत वो अपना काम कर रही है। लॉबिंग फर्म हायर किए जा रहे हैं अमेरिका में, जो बाइडन के साथ उनके ताल्लुकात भी बहुत अच्छे हैं। और जनरल बादशाह और बिलावल भुट्टो हालिया इकट्ठे वो दौरा अमेरिका पर थे, उन्होंने CIA से मुलाकातें की और फिर अमेरिका के हुकाम हैं उनसे मुलाकातें हुई। तो ये मामला बड़ा गंभीर होता चला जा रहा है कि क्या पाकिस्तान की अगली जो बिलावल भुट्टो साहब हैं वो अगले इक़्तिदार में वज़ीर-ए-आज़म होंगे, और ये बड़ा अहम सवाल है। तो आज जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट हुई है वो ये है कि सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज खोखर, उन्होंने सेनेटरशिप को लात मार दी है, लेकिन अपने मफादात का सौदा नहीं किया, अपने नजरिए का सौदा नहीं किया और इस्तीफा दे दिया है बाकायदा तौर पर। यह बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में भी जनाब बगावत खड़ी हो चुकी है और बिलावल भुट्टो के आगे झुकने से इनकार कर दिया। ये पहली खबर आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। पार्टी क़यादत मेरी सियासी मौक़िफ़ से खुश नहीं है, मुझे मुस्ताफ़ी होने का कहा गया, कल चेयरमैन सेनेट को बाज़ाब्ता तौर पर इस्तीफा पेश करूंगा। मुस्तफ़ा नवाज खोखर का ट्वीट। अब जो पार्टी क़यादत है वो इस वजह से मुस्तफ़ा नवाज खोखर से खुश नहीं है क्योंकि इन्होंने आज़म स्वाति के मामले पर कहा था कि जैसे फौज जो है वो मेजर जनरल फैसल नसीर के साथ खड़ी हुई है, बिल्कुल इसी तरह से मैं अपने आज़म स्वाति के साथ खड़ा हुआ हूं। तो इन्होंने बवांगे दौल ऐलान किया था, इनका बयानिया भी पूरी कौम के सामने एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानिया है। तो इसके बाद बड़ा वाज़ेह तौर पर यह नजर आ रहा है कि जनाब ये सेनेटरशिप से नहीं बल्कि पार्टी क़यादत ने पीपल्स पार्टी से भी निकाल दिया है मुस्तफ़ा नवाज खोखर को। इनसे डील मांगी गई थी कि आप एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर हिट ना करें, तो उन्होंने ये बाकायदा तौर पर इनकार कर दिया। तो अब वो अपनी सेनेटरशिप से हाथ धो बैठे हैं। तो मेरे ज़राए के मुताबिक इमरान खान साहब ने बैकडोर राब्ते इनके साथ शुरू कर दिए हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरवाजे खोल दिए हैं कि आप जब आना चाहें आप हमारे हकीकी आज़ादी के सफ़र का हिस्सा बन सकते हैं। और दूसरा ये कि आज इत्तेज़ाद एहसन साहब जो हैं उन्होंने इमरान खान साहब से बहुत अहम मुलाकात की है। और आपको पता है कि इत्तेज़ाद एहसन इमरान खान साहब एक दूसरे के बड़ा करीबी हैं और ख़बरें भी चलती रही कि इत्तेज़ाद एहसन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शिरकत जो है वो कर लेंगे, वो शमूलियत इख्तियार कर लेंगे। जब इत्तेज़ाद एहसन जो हैं उनके भी इख्तलाफात हुए थे जब उन्होंने जनरल बाजवा का नाम लिया था, तो बिल्कुल उसी तरह से यही जो मामलात है वो मुस्तफ़ा नवाज खोखर के साथ हुए हैं। तो आज इत्तेज़ाद एहसन की इमरान खान साहब से मुलाकात हुई। उन्होंने कहा कि इमरान खान बहुत निडर इंसान है, बहुत बहादुर हैं। और इमरान खान साहब ने भी कहा कि इत्तेज़ाद एहसन का मुस्तकबिल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है। 17 साल से इनको मैं अपनी पार्टी से शमूलियत का कह रहा हूँ। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि मेरा और इत्तेज़ाद एहसन का नजरिया बिल्कुल एक जैसा है। अब आज है कि इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने का ग्रीन सिग्नल आ चुका है। एक ग्रीन सिग्नल किसने दिया, इसका वजह क्या है, मकसद क्या है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो मैंने आपको ये भी बताया था कि 2 साल की एक्सटेंशन पर भी गौर हो रहा है। तो अहम तरीन ज़राए जो हैं वो वाज़ेह तौर पर मुझे खबर दे रहे हैं कि इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने का ग्रीन सिग्नल मिल चुका है। क्योंकि अगर ये इमरान खान साहब को गिरफ्तार नहीं करते, जो कि इस वक्त बड़े हाउस के अंदर, बड़े घर में, जनाब चिड़ियाघर आप इसको कह सकते हैं, वहां पर ये मुशावरत हो रही है कि अगर आप इमरान खान साहब को गिरफ्तार नहीं करते तो इमरान खान जब पिंडी पहुंचेगा तो ये हमारे लिए बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाएगा और फिर हमारे हाथ में गेम नहीं रहेगी और ये हम सबको बहा कर ले जाएगा। तो इमरान खान को गिरफ्तार करना इस वक्त बहुत ज्यादा जरूरी बन चुका है और ये लॉन्ग मार्च किसी ना किसी तरीके से रोकना है। तो ख्वाजा साद रफीक ने भी ये कहा कि अगर इमरान खान जो है वो लॉन्ग मार्च लेकर आ जाते हैं तो मार्शल लॉ लग जाएगा। नए आर्मी चीफ की तैनाती और नवाज शरीफ का फड्डा। मरियम नवाज ग्रुप की नंगी वीडियोस लीक हो चुकी हैं। ये हुई नहीं है बल्कि लीक हो चुकी हैं, सोशल मीडिया पर अभी सामने आपके साथ आए या ना आए मौसूल हो गई हैं हमें। और जब देखा तो मैं दंग रह गया कि ये पाकिस्तान में चल क्या रहा है कि पाकिस्तान को वीडियोस्तान बना दिया गया, ये नया कट्टा खुल चुका है। अब ये वीडियो किसकी है, खातून इसमें कौन सी है, मामला क्या है और मरियम नवाज को ये वीडियो जो है वो लीक करके क्या पैगाम दिया गया है। अब ये एजाज सैयद साहब हैं, जियो न्यूज़ के रिपोर्टर हैं, उन्होंने वाज़ेह तौर पर खबर दी थी कि जनाब अगले आर्मी चीफ नवाज शरीफ साहब चाहते हैं कि वो जनरल आसिम मुनीर को लगा दे, लेकिन जनरल बाजवा साहब जो है वो किसी और को आर्मी चीफ लगाना चाहते हैं और नवाज शरीफ जो है वो एक्सटेंशन देने के हक में भी नहीं है। वो नहीं चाहते कि जनरल बाजवा को मजीद एक्सटेंशन दी जाए। ये खबरें जो है वो सोशल मीडिया पर क्या बल्कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर भी भरपूर तरीके से चलना शुरू हो चुकी थी। टॉक शोज पर इस पर बात भी होना शुरू हो गई थी। जो वीडियो सामने आ रही हैं पार्लियामेंट लॉजेस, सेनेट के लॉजेस, और इसका मतलब ये है कि वो सारे के सारे हाउसेस बग हैं जहां पर MNAs और सेनेटर्स जो हैं और जो वजीर हैं वो अपना स्टे करते हैं। वो सारे के सारे घर जो हैं वो बग हैं। कुछ मखसूस होटल हैं उनको भी बग कर लिया गया है। और अब ये करता कौन है, क्योंकि हनी ट्रैप जो इस्लामाबाद में बहुत ताकतवर शख्सियत हैं वो ये 6 साल से काम कर रहे हैं। उन्होंने 6 साल से ये सारा रिकॉर्ड इकट्ठा किया, सारे हाउसेस को बग किया। आज़म स्वाति साहब की जो वीडियो आपने उन्होंने बताया कि मेरी बेटी को जो वीडियो भेजी गई है वो सुप्रीम
जुडिशियल कॉम्प्लेक्स की है जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंडर आता है। तो इस सारे मामले पे आपको ये भी पता चलता है कि सुप्रीम कोर्ट के जो आला तरीन जजेस हैं वो वहां पर जनाब अपना स्टे करते थे, जहां पर आजम स्वाति साहब की वीडियो आई। तो ये क्या जजेस की भी वीडियोस मौजूद है, क्या उनको भी ब्लैकमेल किया जाता रहा है पाकिस्तान माजी करीब के अंदर? बिल्कुल। अगर मैं आपको ये बताऊं कि अप्रैल के बाद जब इमरान खान साहब ने एक असम्बलियां तहलील कर दी थी और फिर एक बैरूनी मुदाखलत के बाद जो उन्होंने आर्टिकल 5 का इस्तेमाल किया था डिप्टी स्पीकर ने, तो उसके बाद अदालतें जो है वो इमरान खान के इस असम्बली तहलील करने के हक पे फैसला सुनाने जा रही थी। लेकिन हनी ट्रैप ने वहां पर जाकर उनको ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया कि अगर आपने इमरान खान के हक में ये फैसला सुनाया तो आपकी फलां वीडियोस जो है वो लीक कर दी जाएंगी, आपके किरदार पर ये उंगलियां उठना शुरू हो जाएंगी। तो इस सारे डर पर फिर इमरान खान के खिलाफ मुबैना तौर पर ये सारे का सारा फैसला जो है वो सामने आता है। तो बिल्कुल इसी तरह से ये ब्लैकमेलिंग टैक्टिक्स जो है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में इस्तेमाल हो रही हैं। तो अब ये साबिक सेनेटर हैं परवेज रशीद साहब, पाकिस्तान मुस्लिम नवाज के बड़े ये लीडिंग फेस है, मरियम नवाज के बड़े करीब हैं और ये बिल्कुल इसी तरह से मरियम नवाज के करीब जो हैं उनकी ये वीडियो सामने आना ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो चुका है। और दूसरी तरफ नवंबर की तैनाती पर नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज का फड्डा पड़ा हुआ है, वो बिल्कुल नहीं मान रहे जो बड़े साहब चाहते हैं। तो ये सेनेटर साहब की साबिक सेनेटर परवेज रशीद साहब की वीडियो सामने आई है खातून के साथ जिसमें वीडियो कॉल कर रहे हैं। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वीडियो कॉल व्हाट्सएप पे की जा रही है और वो वीडियो रिलीज हो चुकी है। अब ये किसने रिकॉर्ड की है ये सारा मामला, क्या आपके मोबाइल फोन को भी बग कर लिया गया है, व्हाट्सएप भी बग कर लिया गया है? ये बड़े अहम सवाल इस वक्त पाकिस्तान की सिक्योरिटी के ऊपर खड़े हो चुके हैं। तो हनी ट्रैप जो है वो खवातीन को भी हायर कर लेते हैं, चंद खवातीन को हायर करके वो जनाब इस तरह के अमल करवाते हैं, वीडियोस जो हैं वो बनवाते हैं, तो उसके बाद उन वीडियोस को लीक करवा दिया जाता है। अब जो वीडियोस तो सामने आ गई और ये मरियम नवाज को बाकायदा तौर पर ये पैगाम दिया गया है कि आप अगर हद से बाहर आती हैं, रेड लाइन क्रॉस करती हैं, तो जनाब आप लोगों की वीडियोस भी हमारे पास मौजूद हैं और अगर आपने नए आर्मी चीफ की तैनाती पर हमारे साथ कोई फड्डा करने की कोशिश की तो आप सबको नंगा कर दिया जाएगा। तो नून लीग ने भी बाकायदा तौर पर अपना कार्ड फेंक दिया है और जनरल बाजवा के खिलाफ क्या ऐलान जंग कर दिया गया है। अरशद शरीफ का जो कत्ल केस है उसमें एक बहुत बड़ी पेशरफ सामने आई है। राना सनाउल्लाह साहब ने ये कहा है कि अरशद शरीफ जो है उनको गलत शनाख्त के तौर पर गलती से कत्ल नहीं किया गया बल्कि कत्ल जो है वो प्री प्लान था और बिल्कुल करीब से उनको गोलियां मारी गई हैं। और राना सनाउल्लाह ने पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर ने कीनिया की पुलिस का जो मौकफ है उसको मुस्तरद कर दिया है और उन्होंने कहा कि कीनिया की पुलिस जो है वो तो पैसे लेकर भी कत्ल कर देती है और हम कातिलों के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं। अब ये पैसे किसने दिए हैं? और फिर ये जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब हैं उन्होंने चीफ जस्टिस पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट को खत लिख दिया है। उन्होंने कहा कि खत में कत्ल के हकायक जानने के लिए जुडिशियल कमीशन बनाया जाए और इस्तदा की कि जुडिशियल कमीशन अरशद शरीफ को मिलने वाली धमकियों यानी कि कौन पाकिस्तान में उनको धमकियां देता रहा है, इससे वाज़ेह होता है कि हुकूमत अरशद शरीफ साहब को धमकियां नहीं दे रही थी और बैरून मुल्क रवानगी के सूरतकारों से मुतल्लिक 5 सवालात पर गौर किया जा सकता है। इन सवालात में क्या कोई वफाकी या सूबाई एजेंसी या इदारा अरशद शरीफ को मिलने वाली धमकी से आगाह थे? ये बहुत बड़ा सवाल पूछा गया है शहबाज शरीफ साहब की जानिब से। फिर उन्होंने कहा कि अरशद शरीफ के बैरून मुल्क जाने में किसने सहूलत दी? अगर अरशद शरीफ की जान को खतरा था तो उसकी जान के बचाव के लिए इक़दाम किए गए कि क्या कोई वफाकी या सूबाई एजेंसी या इदारा अरशद शरीफ को मिलने वाली धमकी से आगाह थे? बिल्कुल थे। उन्होंने खत लिखा था सदर पाकिस्तान को, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, लेकिन किसी ने कान नहीं धरे थे कि उनको सिक्योरिटी थ्रेट है। तो ये सारा मामला जो है वो किस जानिब जा रहा है और किस की तरफ ये तोपों का रुख कर दिया गया है कि इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो ये आप समझ सकते हैं कि इस वक्त अरशद शरीफ के कातिल कौन है और हुकूमत ने उनकी तरफ इशारा करना शुरू कर दिया। अब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, ख्याल रखना है। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।